Good morning, friends. So, we are back again with one more video lecture of the subject Physical Education for class 12th. My dear students, when we met last time in the video lecture 1, we started first chapter Planning in Sports. And before starting this first chapter, we have discussed about the full syllabus of what is going to come in class 12th. Now, today, with the help of this second video lecture, we are going to continue with our first chapter Planning in Sports. My dear students, if you remember, as I told you, there are 6 main topics in this chapter. The first chapter has 6 main topics. Out of these 6 main topics, we have discussed one topic in the first video lecture. And what was the name? It was planning. The first video lecture was all about planning. That what is planning, what is meaning, what is the process, what are the benefits of planning. So that was the first topic that we discussed, and I had given you homework also. I hope all of you have written that one question, that one topic in very detail, in a perfect good way, by looking at the PDF that I sent you in the group regarding the full chapter of this planning in sports. So I hope you are done with this first topic and you have understood and written it very well. So now we are going forward with the chapter, and we are going to talk about one more topic now in this video lecture number 2. So the topic that we are going to start now is various committees and the responsibilities. My dear students, whenever you are going to have any kind of planning regarding the sports day in your school, you need to make various committees before you start any of the program or before you start planning also. So the making committees is a main part of the planning, because you need to identify, you need to visualize the whole function before it actually happens. और इसीलिए जब कोई प्रोग्राम सक्सेसफुल बनाना हो तो बिल्कुल टू द पॉइंट प्लानिंग पहले से डन होनी चाहिए. तो इस टॉपिक का नाम है वेरियस कमिटीज़, बहुत सारी कमिटीज़ एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मान लीजिए कि आपको आपके स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करना है, तो क्या क्या कमिटीज़ आप बनाएंगे और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी. बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है. ये टॉपिक सिर्फ स्पोर्ट्स डे के लिए नहीं, आप कोई भी कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको काम आएगा. आप कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे तो भी आपको काम आएगा. कोई फैमिली प्रोग्राम आपके घर पे काम आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो भी आपको ये काम आएगा. ये प्लानिंग है, ये हर जगह होता है. इसकी रंग रूप रेखा बदलती हैं, लेकिन मोर और लेस ये बिल्कुल सेम रहते हैं. सो अंडरस्टैंड वेरी प्रॉपरली what we are going to discuss. आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट है, इसमें वेरियस कमिटीज़ दी हुई हैं. देखिए आप टॉप मोस्ट से अगर इस चार्ट को हम देखना शुरू करें, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, ये वो पर्सन है जो सबसे टॉप पर होते हैं प्लानिंग के. मतलब मान लीजिए अगर आप स्कूल में प्लानिंग कर रहे हैं तो जैसे हमारे स्कूल में डायरेक्टर्स हैं, सो सबसे टॉप पे वो आते हैं. बिलो दैट एग्जीक्यूटिव कमिटी, एक पूरी कमिटी होती है उनके अंडर में जो उनसे कांटेक्ट करती है, क्योंकि अ मेन डायरेक्टर पर्सन कैन नॉट टॉक विथ ईच एंड एवरी टीचर, ही कैन नॉट टॉक विथ ईच एंड एवरी टीम हु इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट, ही कैन नॉट टॉक टू ईच एंड एवरी participant, he cannot talk to each and every student. So obviously there will be committees. So there will be an executive committee which is responsible to report directly to the director. और इस कमेटी के अंडर में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है पूरी. मतलब मान लीजिए डायरेक्टर सर, उनके अंडर में इंचार्जेस होते हैं, जैसे प्रिंसिपल सर हो गए, जैसे मैं हो गया, जैसे XYZ दूसरे डिपार्टमेंट के आपके स्पोर्ट्स के इंचार्जेस हो गए. हमारी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी रहती है जो डायरेक्टली डायरेक्टर सर को रिपोर्ट करते हैं. इस कमेटी के अंदर में दूसरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रहती है. अब जो कमेटी जाने जो हमारी कमेटी है जो डायरेक्टर सर को रिपोर्ट करती है, वो कमेटी क्या करेगी, मैनेजमेंट करेगी.
वो कमिटी ऑन ग्राउंड प्लानिंग नहीं करेगी, उसके लिए वो कमिटी कुछ और बंदों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देगी। जैसे मैं अगर उस कमिटी में हूँ, एग्जीक्यूटिव कमिटी में, तो मैं एक मीटिंग बुलाऊंगा, उसके अंदर मैं ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के मेंबर्स को बुलाऊंगा जो रिस्पॉन्सिबल होंगे अलग अलग चीज़ों के ड्यूटीज़ के लिए। तो देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के अंदर क्या क्या आता है। लुक एट द चार्ट। पब्लिसिटी कमिटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटी। शायद ये शब्द आपके लिए नया हो, याद रखिएगा, बहुत बार सामने आएगा। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटी मीन्स ट्रांसपोर्ट कमिटी। उसके बाद है रिसेप्शन कमिटी, फिर है डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमिटी। नेक्स्ट वन है ट्रांसपोर्टेशन कमिटी। अब आप सोचेंगे सर आपने तो कहा ट्रांसपोर्टेशन पहले आया है। ट्रांसपोर्टेशन पहले ज़रूर आया है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन यहाँ किस सेंस में है और बोर्डिंग एंड लॉजिंग किस सेंस में है, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे जब आगे हम इस कमिटीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो और उनके अंडर में आते हैं ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमिटी, कमिटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट, कमिटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स, कमिटी फॉर ऑफिशियल्स। उनके अंडर में आते हैं जो और फील्ड पे काम करेंगे, मेन अनाउंसमेंट कमिटी, फर्स्ट एड कमिटी। सो ये एक पूरा चार्ट है कि जब आप कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं आपकी स्कूल में, जनरली ये स्पोर्ट्स के लिए है, कल्चरल के लिए शायद आपको इनमें से कुछ कमिटी की ज़रूरत ना भी पड़े, तो ज़्यादातर हम यहाँ स्पोर्ट्स की ही बात करेंगे। तो स्पोर्ट्स के लिए ये कमिटीज़ हैं अलग अलग जो ऑन पेपर इस चार्ट में दी हुई हैं। अब ज़रूरी नहीं कि यही कमिटीज़ एग्जैक्टली यही की यही हो। दिस डजंट मीन कि यहाँ किसी भी लेवल पे एक कम या एक ज़्यादा कमेटी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ ऊपर के लेवल पे एक और कमेटी हो सकती है, इसके ऊपर के लेवल पे एक और कमेटी हो सकती है। सो दिस इज़ नॉट द यूनिवर्सल चार्ट, यू नो, बट if it will be asking in examination, because this is given in the textbook, so we are going to refer this one. In practical life there could be more than these committees also. Okay, so this is the list of all the committees. अब साथ में टॉपिक का नाम क्या है, कमिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आइए अब हम आगे की स्लाइड में देखते हैं कि इन कमिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। फर्स्ट कमिटी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पब्लिसिटी कमिटी। What is the responsibility of publicity committee? Announcement of date, venue, and advertising any other information about the event to the public. अब आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो पहले सबको पता तो चलना चाहिए। सारी स्कूल जिनको आप चाहते हैं कि वो आके पार्टिसिपेट करें, भाई उनको कब पता चलेगा? आपके स्कूल में बैठे बैठे आप डिस्कशन कर रहे हैं तो पता तो नहीं चलेगा। तो पब्लिसिटी करनी पड़ेगी आपको। आपको अपनी इवेंट के लिए बैनर्स बनाने पड़ेंगे, आपको अपने इवेंट के लिए पैम्पलेट्स छपवाने पड़ेंगे, आपको अपने इवेंट्स के लिए टेलीफोन्स करने पड़ेंगे, सबको इनवाइट करना पड़ेगा। सो पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, स्पॉन्सर्स ढूंढने पड़ेंगे आपको। तो पब्लिसिटी कमेटी की ये जिम्मेदारी है, डेट, वेन्यू, ये सब अनाउंस करें और एडवर्टाइजमेंट करें। सेकेंड वन, ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि इट हैज़ टू प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट टू वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल टीम्स इन्वॉल्व इन द इवेंट। मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं आप, बहुत ही नेशनल लेवल का प्रोग्राम कर रहे हैं आप यहाँ पे। अब नेशनल लेवल का प्रोग्राम है तो आपको हर जगह से टीम आएंगी, हर जगह से टीम आएंगी, मतलब दूसरे स्टेट में से भी आएंगी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में से भी आएंगी, इंटरनेशनल लेवल है तो दूसरी कंट्रीज़ में से आएंगी। तो उनको आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है। अब ट्रांसपोर्ट से क्या मतलब है आपको? मान लीजिए आप नेशनल लेवल का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मान लीजिए कोई पंजाब से टीम आ रही है, तो क्या आप कोई व्हीकल वहाँ भिजवाएंगे पंजाब के लिए? जी नहीं। इसका मतलब है कि वो लोग जब वहाँ से यहाँ तक आते हैं, आपके स्टेट में, आपके विलेज में, आपके सिटी में, तो वहाँ से वो आपकी स्कूल तक कैसे पहुँचे? उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लोकल लेवल पे प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए एक पूरी अलग से कमिटी अपॉइंट की जाती है जो इन्हीं चीज़ों के बारे में ध्यान रखती है और इन्हीं का पूरा रिकॉर्ड रखती है कि किनको कहाँ से पिकअप करना है, किनको कहाँ से ड्रॉप करना है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ट्रांसपोर्ट कमिटी की। नेक्स्ट वन इज़ ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट्स कमिटी। भाई स्पोर्ट्स इवेंट हैं तो ग्राउंड प्रिपेयर करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती है? इवेंट के लिए ग्राउंड को अच्छे से रेडी करना,
जैसे मान लीजिए इस इवेंट में क्रिकेट मैच भी होने वाली है, फुटबॉल भी होने वाला है, तो फुटबॉल और क्रिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो एक मेजरमेंट्स होते हैं कि इतने मीटर के अंतर पे आपको ये रेखा खींचनी है, इतने मीटर के अंतर पे आपको ये रेखा खींचनी है, ये दायरा बनाना है आपको, ये सारा पूरा जो फील्ड आपको रेडी करना है वो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमिटी रेडी करती है। नेक्स्ट वन, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कई बार ट्रांसपोर्टेशन के साथ इसको यूज़ किया जाता है इस वर्ड को। क्या मतलब है इसका, क्या कमिटी, इस कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है? इस कमिटी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग एकोमोडेशन एंड फूड फॉर द पार्टिसिपेटिंग टीम्स एंड इट्स प्लेयर्स। पहले क्या था ट्रांसपोर्ट कमिटी में, उनको लेके आना और उनको छोड़ना, वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अब ये किस टाइप की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है? अगर आप इनको यहाँ लेके आ गए, बाद में आपने उनके रुकने के लिए कहीं ना कहीं तो इंतज़ाम किया होगा। आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे चला रहे हैं बहुत ही बड़ी इवेंट, तो आपने रहने करने की तो सुविधा की होगी। तो उसके लिए आपको इनको वहाँ तक लेके जाने के लिए और उनको वहाँ फूड प्रोवाइड करवाने के लिए क्या सुविधा आपने की है, वो ये कमिटी ध्यान रखेगी। नेक्स्ट कमिटी है ऑफिशियल कमिटी। अब ये ऑफिशियल कमिटी क्या करती है? ऑफिशियल कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो ऑफिशियल्स, जजेस, रेफरीज, स्टार्टर्स, एम्पायर्स, स्कोरर्स, इन सब को डिसाइड करे कि हर एक इवेंट के लिए कौन जजेस रहेंगे, कौन रेफरीज रहेंगे, कौन एम्पायर्स रहेंगे, उन सब के बारे में तय करे, उनके साथ कम्युनिकेट करे, उनके रिक्वायरमेंट्स पूरी करे। वो ड्यूटी रहती है इस ऑफिशियल कमिटी की। नेक्स्ट वन इज रिसेप्शन कमिटी। The main responsibility of this reception committee is welcoming the chief guest and important personals in the inauguration or closing ceremony of the event. Reception, भाई इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे गेस्ट आएंगे, आसपास के स्कूल के दूसरे प्रिंसिपल्स आएंगे, आपके लोकल एरियाज़ के जो अथॉरिटी पर्सन होंगे वो आएंगे, कोई स्टेट लेवल के कोई ऑफिशियल पॉलिटिशियन आएंगे। तो एक रिसेप्शन कमिटी होती है जो इन सब का वेलकम करेगी और इन सब का ख्याल रखेगी। इनॉग्रेशन, जब उद्घाटन समारोह हो तब उनको लेके आएगी, उनकी जानकारी देगी उनको, और जो क्लोजिंग सेरेमनी हो उनमें भी वो उपस्थित हैं कि नहीं, उनके हाथों से इनाम बंटवाना है तो उनके साथ जो पूरा एक कोलैबोरेशन करना है वो ये कमेटी करेगी। नेक्स्ट वन इज डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कमिटी इज टू डेकोरेट द स्पोर्ट्स स्टेडियम और द सेरेमनी एरिया ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन और प्रेजेंटेशन, है ना। एक पूरी कमेटी रहेगी जो पूरा स्टेडियम और जहाँ कल्चरल प्रोग्राम होगा स्टार्टिंग में या एंड में, तो उस पर्टिकुलर हॉल को या ग्राउंड को पूरा अच्छे से डेकोरेट करना वो इस कमेटी की जिम्मेदारी रहेगी। नेक्स्ट कम्स रिफ्रेशमेंट कमेटी। रिफ्रेशमेंट मतलब चाय पानी नाश्ता खाना, इन सब के लिए कमेटी रहेगी। प्रोवाइडिंग रिफ्रेशमेंट एंड स्नैक्स टू द चीफ गेस्ट, ऑफिशियल्स एंड कॉम्पिटिटर्स। मतलब ये कमेटी जो चीफ गेस्ट आए हैं उनका अरेंजमेंट ऑब्वियसली अलग से होगा, कोई स्पेशल वीआईपी जगह पे, ऑफिशियल्स हैं उनका अलग जगह पे होगा, कॉम्पिटिटर्स हैं उनका अलग जगह पे होगा। तो रिफ्रेशमेंट कमेटी हर जगह की सुविधाओं को ध्यान रखेगी कि जब लंच टाइम है, जब ब्रेकफास्ट टाइम है, जब टी टाइम है, तो इन सब समय पे सारी सुविधाएं हाजिर है कि नहीं, सब चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं, कौन किसको सर्व करेगा, कौन कहाँ बैठेगा, ये पूरा ये रिफ्रेशमेंट कमेटी तय करेगी। नेक्स्ट वन इज़ अनाउंसमेंट कमेटी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, कि भाई अब पूरा स्पोर्ट्स प्रोग्राम चल रहा है ग्राउंड पे, हर एक इवेंट चल रही है, तो बिल्कुल कोई म्यूट सेशन तो नहीं रहेगा वहाँ पे। अनाउंसमेंट होगी कंटिन्यूस, जैसे आपको पता होगा स्पोर्ट्स डे में एक जगह बहुत सारे इवेंट्स चल रही हैं, तो अनाउंसमेंट कंटिन्यू होती रहेगी कि अब इस पार्ट ऑफ ग्राउंड में ये इवेंट चल रही है, इस पार्ट ऑफ ग्राउंड में ये इवेंट चल रही है, इस इवेंट का ये स्कोर है, ये गेम यहाँ तक पहुँचा, एंड सो ऑन कि ये इवेंट पूरा हो चुका है, इस इवेंट में ये टीम विजेता हुई है। सो देयर विल बी एन अनाउंसमेंट कमिटी, एंकरिंग कमिटी, which will be continuously speaking over there that what is exactly going on the ground. So that will be taken care of by this announcement committee. Next one is first aid committee, but naturally it's a sports event, so it will happen many a times कि बहुत सारे प्लेयर्स, कहीं कोई गिर गया, कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जहाँ दो प्लेयर्स एक दूसरे से टकरा गए,
कहीं कुछ और हादसा हो गया, इन सब चीज़ों में कभी कुछ लग गया, कहीं कोई इंजरी आ गई, तो फर्स्ट एड का सारा सामान, और अगर बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम है तो डॉक्टर्स, फिजिशियंस, मेडिकल एक्सपर्ट, ये सब वहाँ उस कमिटी में हाज़िर रहते हैं। और उनके साथ साथ दूसरे हेल्पिंग हैंड के और से वॉलंटियर्स रहेंगे जो पूरा हेल्प करेंगे, डॉक्टर्स एंड नर्सेज रहेंगी। तो फर्स्ट एड कमेटी होगी जो पूरी इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखेगी, ताकि इंजरी हुई है तो उसको ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ वहाँ ट्रीटमेंट की जा सके। तो ये है कुछ कमिटीज़ जो एक बहुत ही छोटा या चाहे बड़ा प्रोग्राम हो उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग पार्ट में बनानी पड़ती हैं, और उनकी जो ड्यूटीज़ है वो उनको पहले से असाइन करनी पड़ती हैं, ताकि उनको पता चले कि ड्यूरिंग द इवेंट उनको कहाँ कहाँ रहना है और उनको क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जो उनको निभानी है, ताकि पूरा जो प्रोग्राम है वो स्मूथली चले। और जैसे मैंने आपको पहले कहा, ज़रूरी नहीं कि यही 10 कमिटीज़ की जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हमने यहाँ चर्चा की तो ये 10 की 10 ही होनी चाहिए, ये 11 नहीं हो सकती, ये चार्ट जो हमने बनाया वही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। नो, दिस इज़ नॉट द यूनिवर्सल चार्ट, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन चार्ट जो आपको सिखाता है कि भाई ऐसे बनती है पूरी प्लानिंग, ऐसे बनती है पूरी कमिटीज़, और ऐसे दी जाती है इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये था कमिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टॉपिक का एक हिस्सा। अभी एक और हिस्सा बाकी है इसी टॉपिक का, कि हम सेकंड टॉपिक कर रहे हैं, तो इसी टॉपिक का एक और हिस्सा बाकी है। तो आइए अब उस और एक और हिस्से की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कमिटी। ये जो अलग अलग कमिटीज़ हमने बनाई हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हमने चर्चा की, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी प्री यानी कि टूर्नामेंट होने से पहले, ड्यूरिंग यानी टूर्नामेंट के समय पे, एंड पोस्ट यानी टूर्नामेंट के बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये, पर्टिकुलर कमिटी वाइज नहीं, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो जनरल सभी टीम्स को मिला के सोचना है इनके बारे में। नंबर 1, टू प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ द टूर्नामेंट, पूरा शेड्यूल बनाएं, कौन सी डेट को इवेंट होगी, कौन से वेन्यू पे होगी, कितने बजे कौन सी इवेंट शुरू होगी, कितने बजे इनॉग्रेशन होगा, कितने बजे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितने बजे क्लोजिंग सेरेमनी होगी, एवरीथिंग ऑन पेपर शेड्यूल तय होना चाहिए। Second one, to prepare the budget of the tournament. But obviously, suppose we are organizing this tournament in our school, then but naturally you need to decide what will be the budget, how much will be the expenditure, total expenditure of the tournament. So you need to decide, you need to think about it. Okay, trophies, this much expenditure, certificates, this much, judges we have to pay this much, transport this much. So we need to prepare our full budget. Next one is to form various committees. जैसे कमिटीज़ की बात आगे आ चुकी, ऐसी कमिटीज़ बनाना। नेक्स्ट वन इज़ टू प्रिपेयर स्पोर्ट्स ग्राउंड्स एंड ट्रैक्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स को रेडी करना, पूरा ट्रैक रेडी करना सारे इवेंट्स के लिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल गेम। नेक्स्ट वन इज़ टू सेंड द एंट्री फॉर्म्स टू द वेरियस इंस्टीट्यूशन, आप अपने हिसाब से पूरे रेडी हैं, टीमों को आपको एंट्री फॉर्म भेजना है जिस पे वो रिप्लाई करेंगी कि कौन सी स्पोर्ट्स के लिए कौन से बच्चे, कितने बच्चे क्या पार्ट ले रहे हैं, तो आपको एंट्री फॉर्म पहले से भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू वेरियस टीम्स, एक बार टीम के पार्टिसिपेशन फॉर्म वापस आ गए, एंट्री फॉर्म आपके पास, उसके बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको कंटिन्यू उनको आइदर बाय ईमेल और बाय टेलीफोन आपको पहुंचानी पड़े, कि जैसे आपको इतने बजे यहाँ पहुँच जाना है, आपका अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है, ये सारी माहिती जो है वो आपको कंटिन्यू उनके साथ टच में रह के उनको इन्फॉर्मेशन सारी देनी है। नेक्स्ट वन इज़ टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, वो कहाँ रुकेंगे, खाना पीना क्या होगा, सारी सुख सुविधाएं उनकी, रहने करने का पूरा, अगर 3-4 दिन का प्रोग्राम है तो नाइट स्टे कैसे होगा, एक रूम में कितने बंदे रुकेंगे, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग सुविधाएँ हैं कि नहीं, वॉशरूम्स की सुविधा प्रॉपर है कि नहीं, क्लीनलीनेस की सुविधा प्रॉपर है कि नहीं, ईच एंड एवरीथिंग ओवर दैट। नेक्स्ट वन इज़ टू अरेंज द प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स, अगर आप अरेंज कर रहे हैं तो आपको स्पोर्ट्स डे जिस दिन आप मना रहे हैं या जिस दिन आपने पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है उसके पहले से सर्टिफिकेट्स और प्राइजेस आपको ख़रीदने हैं, प्रिंट करवाने हैं, रेडी रखने हैं,
कुछ इन्फॉर्मेशन उनमें फिलअप करके रखनी है, तो ये सारी चीज़ें टूर्नामेंट से पहले करनी होती हैं. दैट इज़ वाई दीज आर द प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अब जब टूर्नामेंट चल रहा है तो क्या वो अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्या अलग अलग जिम्मेदारियां हैं जो आपको निभानी है. ये ज़्यादातर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट मतलब ऑन स्पोर्ट्स ग्राउंड ज़्यादातर. नंबर 1 इज़ टू चेक द स्पोर्ट्स ग्राउंड एंड रिलेटेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आर इन ऑर्डर और नॉट. मतलब आपने तय किया है कि इस जगह पे 100 मीटर रेस होगी, तो उसके लिए अगर आपको प्रॉपर ड्राइंग और मेज़रमेंट आपने वहाँ पे ग्राउंड रेडी किया है कि नहीं. अगर आपने तय किया है कि इस जगह पे मान लीजिए बास्केटबॉल की गेम होंगी, तो प्रॉपर कोर्ट अवेलेबल है कि नहीं, बास्केट्स प्रॉपर जगह पे हैं कि नहीं, बॉल आपके पास इनफ मात्रा में है कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. सेकेंड इज़ टू एंश्योर इवेंट्स आर एज पर शेड्यूल. ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपने शेड्यूल तय किया था, जो प्लानिंग बनाई थी, उसी टाइम पे उसी शेड्यूल के हिसाब से सारी इवेंट्स चल तो रही हैं, कहीं कोई लेगुना तो नहीं. नेक्स्ट इज़ टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब बहुत बड़े ग्राउंड हो, जब बहुत सारी इवेंट्स एक साथ चल रही हों, तो डिसिप्लिन कमेटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है. ध्यान रखना है, कई बार स्पोर्ट्स में मनभेद होने के कारण या कोई गलत डिसीजन के कारण बहुत बार अनबन हो जाती है. तो डिसिप्लिन कमेटी की जिम्मेदारी रहती है कि उस हालात को संभालें और प्रॉपर सबको फेयर जस्टिस हो सके ऐसे निर्णय वहाँ पे लें. नेक्स्ट इज़ टू एंश्योर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इनॉग्रेशन. पूरे स्पोर्ट्स इवेंट शुरू हों उससे पहले इनॉग्रेशन, कल्चरल प्रोग्राम हो, दीप प्रागट्य हो, शुरुआत के जो इनॉग्रेशन इवेंट्स होते हैं उनका सारा मैनेजमेंट. नेक्स्ट वन इज़ टू प्रिपेयर प्रॉपर स्कोर शीट. जो भी सारी इवेंट चल रही हैं उनके स्कोर्स प्रॉपरली नोट डाउन हो रहे हैं कि नहीं, उनकी स्कोर शीट्स, बिकॉज कभी भी कोई भी टीम आपको चैलेंज कर सकती है. सो ऑन पेपर आपके पास सारे रिकॉर्ड होने चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ टू मेक नेसेसरी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द टूर्नामेंट. ये ऑन ग्राउंड होता है, ड्यूरिंग द इवेंट होता है कि आपको कंटिन्यू अनाउंसमेंट करनी है. अब कौन सी इवेंट कहाँ पहुँची, कौन सी इवेंट में क्या चल रहा है, कितनी बाकी है, अब कितने राउंड बाकी हैं, सेमीफाइनल चल रहा है, फाइनल चल रहा है, एंड सो ऑन. नेक्स्ट वन इज़ टू इम्पार्ट फर्स्ट एड टू द इंजर्ड स्टूडेंट्स. ये भी ऑन ग्राउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट. इसकी पहले या बाद में नहीं, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ज़रूरत पड़ती है कि कोई अगर इंजर्ड स्टूडेंट हैं तो उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाया जाए. सो दीज आर द ड्यूरिंग द टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. नेक्स्ट वन इज़ पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. यानी कि टूर्नामेंट पूरी हो गई, उसके बाद होस्ट स्कूल यानी कि जैसे कि हम हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी. फर्स्ट वन इज़ टू कलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स. अलग अलग जगह पे बहुत सारी स्पोर्ट्स इवेंट चल रही थी, हर जगह के अपने रिकॉर्ड हैं, हर जगह की अपनी फाइल्स हैं, हर जगह की अपनी स्कोर शीट्स हैं, तो इनको एक जगह इकट्ठा करना. नेक्स्ट वन इज़ टू प्रोवाइड प्रॉपर रिजल्ट टू द मीडिया. इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में देंगे, प्रिंट मीडिया में, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देंगे, हर जगह जहाँ पे आप अपना इवेंट के बारे में देंगे वहाँ प्रॉपर रिजल्ट देने पड़ेंगे आपको. सो प्रॉपर रिजल्ट मेंटेन करना. नेक्स्ट वन इज़ अबाउट टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर. एक आपने शुरुआत में प्लान करने के टाइम पे बजट बनाया था, अब वो बजट था, अब रियल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, उससे कम ज़्यादा एग्जैक्टली उतना, ये सारा एक्सपेंडिचर का आपको एक पूरा लिस्ट बनाना है. नेक्स्ट वन इज़ टू मेक पेमेंट्स टू द ऑफिशियल्स. आपने ट्रॉफीज़ ली हैं, आपने सर्टिफिकेट प्रिंट करवाए हैं, आपने बैनर प्रिंट करवाए हैं, आपने होटल रूम बुक किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने ऑन द स्पॉट उस इवेंट के लिए रेडी की हैं, तो उनको पेमेंट करना है. नेक्स्ट वन इज़ टू गिव प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स. जो टीम जीती, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन सबको प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवाने हैं. नेक्स्ट इज़ टू प्रेजेंट मोमेंटोज टू द चीफ गेस्ट. Mementos means trophies or symbol or any of the posture, any of the photograph, remembrance जो आपने उसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाया है, वो आप चीफ गेस्ट को और गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो उनको देते हैं. नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी रिफंड्स टू द डिपार्टिंग टीम्स. हो सकता है कई बार ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जहाँ पे आपने टीम से कुछ पहले डिपॉजिट ली होती है कि शुरुआत में आपको इतनी डिपॉजिट देनी है, मतलब उनकी ओर से कुछ यहाँ वहाँ हो जाए तो आप उन डिपॉजिट का यूज़ कर सकते हैं. तो शुरुआत में कुछ डिपॉजिट ली आपने हो सकती हैं जो आपको एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम उनको वापस से उनको दे देनी होती है.
तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आफ्टर द टूर्नामेंट भी निभानी होती हैं कमिटीज़ को। तो ये था टॉपिक प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे जो है वो ये पूरा सेकंड टॉपिक पूरा होता है। क्या था जो वेरियस कमिटीज़ एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या देखा इनमें हमने, कमिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, पूरा चार्ट देखा हमने, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी, और उसके बाद हमने ये देखा कि क्या क्या टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट के बाद क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको जिम्मेदारियां निभानी है और उनका ध्यान रखना है। ये था सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का, वेरियस कमिटीज़ एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है टूर्नामेंट्स। स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, बहुत फ्रीक्वेंटली इस वर्ड को हम यूज़ भी करते हैं। यहाँ ये टूर्नामेंट चल रहा है, यहाँ फुटबॉल का टूर्नामेंट चल रहा है, यहाँ क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है। इस टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कशन करने अब हम जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे बड़ा टॉपिक है शायद इस पर्टिकुलर चैप्टर का, नाम है टूर्नामेंट, उसका मीनिंग, उसके बेनिफिट्स और उसके टाइप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक स्पोर्ट्स पर्सन को ज़रूर पता होना चाहिए ये कि टूर्नामेंट्स के टाइप्स क्या हैं स्पेशली। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो टूर्नामेंट होता क्या है? द मीनिंग ऑफ द टूर्नामेंट इज, अ टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ मैचेस और स्पोर्टिंग इवेंट्स in which one team and all other team, one team wins and all other teams lose their matches. A tournament means क्या? एक सीरीज ऑफ मैचेस जहाँ बहुत सारी मैचेस हों, अलग अलग टीम्स के साथ खेलें, और एट द एंड ऑफ द सीरीज कोई एक टीम जीते और बाकी सारी टीम्स हार जाएं, उसको बोलते हैं टूर्नामेंट। The tournament can be held at different levels like international, national, state, district, zonal। देखी होंगे आपने, ये लेवल होते हैं अलग अलग। पहले स्कूल लेवल पे, फिर इंटर स्कूल लेवल पे, फिर शायद जोन लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। जाते भी हैं बहुत सारे, हमारे यहाँ स्कूल से भी बच्चे जाते हैं और हर साल जीत के भी आते हैं अलग अलग। और शायद यहाँ जितने सारे ये लेवल लिखे हुए हैं, इन सारे लेवल पे हमारे स्कूल के बच्चों ने पार्ट भी लिया है पास्ट में और अभी भी ले रहे हैं। तो ये सारे अलग अलग लेवल हैं जहाँ टूर्नामेंट हेल्ड होती हैं। कुछ फेमस टूर्नामेंट्स के नाम शायद आप भी जानते होंगे। वर्ल्ड कप्स जो क्रिकेट में यूज़ होता है सामान्यतः, फुटबॉल में यूज़ होता है। विम्बलडन, ये टेनिस के लिए वर्ड यूज़ होता है। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक गेम्स, आप जानते हैं मिक्स ऑफ इवेंट्स रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ फेमस टूर्नामेंट्स हैं ये सारे। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम आपको भी आते होंगे, राइट। तो ये है बेसिक मतलब कि क्या होता है टूर्नामेंट। नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के क्या फ़ायदे होते हैं? सम बेनिफिट्स आर लिस्टेड डाउन ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। यू कैन सी ओवर देयर 6 बेनिफिट्स आर देयर। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज द डेवलपमेंट ऑफ स्किल। टूर्नामेंट से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है स्किल डेवलप होती है। What is the main purpose of this skill development? By participating in tournaments, various sportsmen skills and tactical skills are developed in sportsmen। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनमें स्पोर्ट्स की स्किल्स तो डेवलप होती हैं, साथ में दिमागी तौर पे स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है ये भी खेलने से ही पता चलता है। नो मैटर हाउ मच प्लानिंग यू डू ऑन आउटसाइड द ग्राउंड, हाउ मच स्पोर्ट्स you look on the television, you will not be expert of it until and unless you play that tournament. So if you play the tournament, your skills will improve, your skills will develop. So this is the first advantage of skill development of this having the tournaments. Second advantage or benefit is better selection of players. What is the meaning of better selection of players? By observing the performances and efficiency of sports persons and athletes during the game, it is easier for the selectors to opt for the good players for the future events. क्या फ़ायदा होता है इन टूर्नामेंट्स पे? अगर नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट अगर कोई होनी है, उसके लिए अगर टीम बनानी है सिलेक्टर्स को, तो वो कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली वो लोकल लेवल पे आएंगे, वो जोनल लेवल पे आएंगे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएंगे, वो स्टेट लेवल पे आएंगे। तो ये सारी जो टूर्नामेंट्स होती हैं उनके कारण सिलेक्टर्स को बेटर प्लेयर्स का सिलेक्शन करने के लिए हेल्प मिलती है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है टूर्नामेंट का। नेक्स्ट वन इज सेल्फ मोटिवेशन ऑफ प्लेयर्स।
Means the tournaments are a lot motivating for the players who are participating as well as for those who are the spectators. Means जो टूर्नामेंट खेलते हैं उनको भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस लेवल पे खेल के आया हूँ, मुझे और आगे लेवल पे खेलना है। और जो इन टूर्नामेंट्स को देखते हैं चाहे पर्सनली फेस टू फेस या टीवी पे, उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि देखिए इनमें कितना आगे बढ़ा जा सकता है, हमको भी ये इवेंट में पार्ट लेना है। फोर्थ बेनिफिट इज integration and development of peace. What is the meaning of this? Sports tournaments help in developing national and international integration among the teams and countries they belong to. Playing games on the huge level helps in developing peace among the nation worldwide. See, as we know that India and Pakistan are not playing cricket or not playing any other games. But there was a trial before few years for having the peace. There is a lot of tension between these two countries. So किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ती है शांति प्रस्ताव लेने के लिए, तो उसके लिए स्पोर्ट्स एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। अगर स्पोर्ट्स अच्छे से हो रहा है दोनों टीम्स के बीच में, दोनों नेशंस के बीच में, तो इससे संबंध सुधरते हैं, इनसे सद्भावना विकसित होती है, शांति की भावना विकसित होती है। इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा होते हैं सारे देश। तो टूर्नामेंट के इन मैचेस के ये बहुत ही बड़े फ़ायदे हैं कि इन देशों के बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट वन इज़ रिक्रिएशन एंड प्रमोशन। मीन्स sports tournaments are a best way of recreation and rejuvenation of players as well as spectators. When players perform with full interest for the people who are watching, ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके कारण रिक्रिएशन और प्रमोशन की भावना जो है वो विकसित होती है। मतलब अलग अलग ब्रांड जो हैं उनको प्रमोशन मिलता है। जो स्पोर्ट्स पेन आप देखते होंगे, एक स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपने टी शर्ट्स पे बहुत सारे लोगो साथ में लेके घूमता है, तो एक स्पोर्ट्स पर्सन है वो जीता जागता एक मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का ज़रिया है। तो उससे बहुत सारे रिक्रिएशन होते हैं, नई नई चीज़ें रिक्रिएट होती हैं और प्रमोशन होती हैं जो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है टूर्नामेंट का। व्हाट इज़ द लास्ट एडवांटेज? डेवलप द सोशल क्वालिटीज़। इससे समाज में एक अलग भावना का विकास होता है। थ्रू द टूर्नामेंट्स अ प्लेयर कम्स अक्रॉस मेनी इमोशंस सच एज ब्रदरहुड, भाईचारा, डिसिप्लिन, सिंपथी, फेयर प्ले। ये अलग अलग क्वालिटीज़ हैं जिनका डेवलपमेंट होता है सारे स्पोर्ट्स पर्सन में। आप देखते होंगे, इसीलिए तो स्पोर्ट्स पर्सन अगर मिसबिहेव करें तो उन पे बैन लगाया जाता है, उन पे पनिशमेंट लगाई जाती है, उनको पेनल्टी दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनको हज़ारों लोग या तो टीवी पे या तो फेस टू फेस देख रहे हैं। दैट मीन्स उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं, उनके अंदर जो इमोशंस हैं, वो जो क्वालिटीज़ पूरे दुनिया को दिखाते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो एक की दूसरी या गलत नहीं हो सकती, इसीलिए उन पे फाइन लगाया जाता है। तो ऐसी टूर्नामेंट से सारे पब्लिक में, सारी सोसाइटी में एक अच्छी फीलिंग्स, एक अच्छी क्वालिटीज़, एक अच्छे इमोशंस डेवलप होते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं टूर्नामेंट्स के। तो इस टॉपिक के बारे में हम आगे के वीडियो लेक्चर में और चर्चा करेंगे, बट आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहाँ एंड करेंगे। और इससे पहले कि हम उसको वाइंड अप करें, ज़रा सा अगर एक आध मिनट के अंदर हम रिव्यू ले लें कि हमने क्या किया, तो आपको पता होगा आज हमने 2 टॉपिक पढ़े। कौन कौन से? एक तो कमिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और एक जो अभी अभी हमने ये स्टार्ट किया, टूर्नामेंट्स। अभी इस टूर्नामेंट टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें बाकी है जो आगे आने वाले हम वीडियो लेक्चर 3 में उसको और आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आना बाकी है अभी इस चैप्टर में, जिनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर देखेंगे। तो आज के सेशन को यहाँ वाइंड अप करें। आज का आपका होमवर्क जो है वो रहेगा 2 क्वेश्चंस। मैं दोहराता हूँ, 2 क्वेश्चंस आज आपके होमवर्क में रहेंगे। नंबर 1, एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड क्वेश्चन नंबर 2, इन डिटेल टॉक अबाउट प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमिटीज। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको अच्छे से डिटेल में बड़े क्वेश्चन की तरह लिखने हैं, क्योंकि जब भी आप बड़े क्वेश्चंस आंसर लिखेंगे तो उससे 2 फायदे होंगे। देखिए, टॉपिक तो वही रहते हैं,
एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन कम मार्क्स में आए तो कम लिखना है, ज़्यादा मार्क्स में आए तो ज़्यादा लिखना है। इसलिए हर क्वेश्चन को हम बड़ा क्वेश्चन मान के लिखेंगे तो छोटे 3 मार्क वाले और 1 मार्क वाले क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। और बड़े क्वेश्चन लिखने का फ़ायदा ये भी रहेगा कि सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे और उसी बहाने आप टेक्स्ट बुक में रेफ़र करेंगे ईच एंड एवरी लाइन, जो आपको बहुत आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस सेशन के लिए ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क रहेंगे। ये जो तीसरा टॉपिक हमने शुरू किया टूर्नामेंट का, उसमें से कोई होमवर्क नहीं रहेगा क्योंकि अभी इस टॉपिक को और आगे बढ़ाना बाकी है। जब उस टॉपिक में हम और आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में भी हम अगले वीडियो लेक्चर में होमवर्क लेंगे। फाइन, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो लेक्चर and have a very good day and take care of yourself and your family. Thank you so much.